Yes. Please put up the screen as well. Okay, you've already done that. So, yes, the test, first IQ test was developed by Alfred Binet, but then the first effort to to mark out the individual differences came from Francis Galton. Okay, give me a moment. Yeah, so they have come from the British biologist Francis Galton, who gave simple visual discrimination and highest audible pitch and kinesthetic. The idea was doing before doing all this was to recruit people. There was no other reason why which we were using psychological test. We were using psychology test only to recruit people. Okay, so that was what it was to start with, and then further on, he thought that intelligence could be measured by the sensory discrimination. So if the person is more sensitive and the capacity of sensory discrimination is high, then the person would be considered as more intelligent. नूर, आप म्यूट करेंगे प्लीज? थैंक यू नूर. Give me a moment, please. Yeah, sorry guys, I'm in the hospital with a friend of mine, so I just had to step out. Anyways, yes. So that was done. That is the first mentioned test was done by Katcher, and he had his own parameters to understand the intellectual capacity of different people, including the muscular strength, the speed of movement, the sensitivity. Yet this happened majorly again to recruit people, and especially for the army. जब वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी एंड वी वांटेड टू रिक्रूट bunch of people for the army, that is when these people have done their work to see what exactly is the qualities that we can be recruiting. तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो all these things are more related to the army: muscular strength, speed of movement, sensitivity to pain, keenness of vision and hearing, weight discrimination, reaction time, memory. All, sorry, all this are more related to the army effort, defense personnel. अगर डिफेंस पर्सनल कोई बनना चाहता है तो ये क्वालिटीज उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर ऑन दैट गाइस सो फार? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Now the next thing is a contribution of Alfred Binet. Alfred Binet first IQ test मानी जाती है, and we had spoken about MA upon CA into 100. That's mental age upon chronological age into 100. Um, yes, he wanted to identify the children who are slow learners. तो अल्फ्रेड बिने का आइडिया ये था कि भाई स्लो लर्नर्स या मेंटली स्लो लोगों को मेजर किया जा सके, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही डिजाइन्ड दिस टेस्ट. So the faculties which he measured was the memory, imagery, imagination. Imagery is how much of an image that you can form. Imagination, attention, comprehension, aesthetic sentiment. Sorry guys. So give me a moment. Yes. So now the point is
कि अल्फ्रेड बिने ने जब ये टेस्ट बनाई जो आईक्यू टेस्ट थी, that was again to understand how children can be mentally how these children who are considered as low or as not so good enough, how can they be identified. Okay. So that is why the entire idea of Binet was to identify कि किस तरीके से हम लोग उन बच्चों को अलग करें एंड हाउ कैन वी प्रोवाइड देम बेटर फैसिलिटीज और बेटर स्टफ was was the intention of the people who designed basically Alfred Binet. Okay, and that is why this test is so very popular even today. कि आप सिर्फ 30 सवाल पूछते हो और जब आप 30 सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलता है कि भाई ये बंदा स्लो है या इसका एवरेज इंटेलिजेंस है या हाई इंटेलिजेंस है, जो भी चीजें हैं हम लोगों को उन 30 सवालों में इसका जवाब मिल जाता है, which is a major breakthrough in the field of IQ, in the field of intelligence. The simple reason because whenever they are doing it, they are first of all this was the first intelligence test. That is also the reason why we are considering Alfred Binet as so high. Second thing is there was no other test by which we could have identified what exactly is the problem. कौन सी एबिलिटी कम है बच्चे में, कौन सी एबिलिटी कम है व्यक्ति में, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अगर हम लोग के पास बिने टेस्ट नहीं होती. सो दैट इज अनदर थिंग. देन it was just there was first time where we were asking questions instead of using any physical instruments. ये जैसे कोई क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या कोई लैब हो गई उसमें भेजे बिना बच्चे के आईक्यू के बारे में आइडेंटिफाई करना was the first this was the first time it was happening thanks to Simon Binet, sorry, Alfred Binet. Okay. So why is it called as Simon Binet? Because Simon also had a contribution to it. Simon was also working in as a team with Alfred Binet, which is why there is a kind of we always recommend this test as Binet scale or Simon Binet scale. In India, this the adapted version was done by Kamath. तो हम लोग इंडिया में उसको KBI कहते हैं या कामत बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं. Clear so far? I'm sorry there was a disturbance while I was explaining this, but clear so far? Any doubts, any queries, guys? Any doubts, any queries? धीरज, अंबिली, अमृत, गौरी, नूर, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हेलो, am I audible, guys? हेलो, Yes, am I ma'am. audible? Yes, 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 ma'am. you are. Yes, ma'am. कोई क्वेरी, कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई क्वेरी है इसमें? Ma'am, I have a query, but I will ask, I'll call you after the session because it's a big query regarding my child. That's fine. I know, I remember Amrit, right? Yes, yes, ma'am. So, Yeah, अभी तो Amrit, disturb- if you would have seen my reaction शुरुआत में कि जब आपका मैंने नाम देखा तो मुझे वही याद आया कि यार अमृत को भी कहा है मैंने कि I will talk. So right now I this don't is want to disturb between the session. After the class, मैं आपको call कर लूँगी, ma'am. no problem, Amrit. See, the things are going a little on the hectic side these days, and one of my close friends is a psychiatrist and is a team member. Like we both see cases together. Unfortunately, he also met with a small accident, and he's hospitalized. So I'm with him now. So basically, ये कुछ चीजें चल रही हैं, बाकी job consultations ये सारी चीजें चली रही हैं, which is why a little jumbled up. But then I would be getting back to you. Don't worry. I remember you. Sure, ma'am. Yeah. Okay. Yes. So nothing, no queries on this so far, right? No, ma'am. Okay. Okay. So though the first test was revised in 1908 to add on a few factors, majority of the scale was used as the same thing by 1911.
हाँ, इंडिया में जब इंडियन एडेप्टेशन बना तो थोड़े से चेंजेस लाए गए उस टेस्ट में, बट अदरवाइज द टेस्ट वाज बाय एंड फार सिमिलर अंटिल 1911. फिर एडिशंस आई. इनफैक्ट केबीआई इज आई गेस अवेलेबल इन 3 or 4 languages. It is one of the richest test when it comes to language translation because it's a widely used test. हालांकि नॉर्थ में अगर आप जाते हैं तो केबीआई से ज्यादा भाटिया यूज होता है, लेकिन महाराष्ट्र एंड डाउन साउथ इट इज ऑलवेज केबीआई. फर्दर 1912 में लुइस टर्मन एंड मेरिल टेस्ट कहते हैं इसको. तो 1912 में टर्मन जो थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, he began revisions on the test, and further that test came to be known as Terman and Merrill test. तो स्टैनफोर्ड और बिने को एक सिंपल मतलब स्टैनफोर्ड बिने की स्ट्रेंथ ये थी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो काफी ज्यादा सिंपल था एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टेस्ट. सो टर्मन एंड मेरिल ने जो टेस्ट बनाई दैट वाज मोर एडेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स को किस असिमुलेट किया गया. I will be talking about Terman and Merrill on the chat. Remind this because यहाँ पर मटेरियल में दिया नहीं है. तो टर्मन और मेरिल ने स्टैनफोर्ड बिने के टेस्ट में क्या क्या एडिशंस किए. Just remind me of that question on the chat and I will share some information on that as well because normally इससे related सवाल आते नहीं है but it is always a good to know information. Yes, what then the standardization procedure used by Terman was most rigorous. While बिने एंड कामत की जो टेस्ट थी उसका स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस काफी सिंपल था, दैट इज रिलायबिलिटी वैलिडिटी वगैरह स्कोर करना काफी इजी था. बट देन टर्मन की जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस था वो थोड़ा सा मुश्किल था. The third advantage that Binet and Simon test had was an extensive manual both for administration of the test as well as teaching it for understanding the test. Please understand guys, ये पहली IQ test थी. जो कामत बिने की टेस्ट थी, जो पहली IQ टेस्ट थी, तो उसके बाद में जब इसको हम लोगों ने रिवाइज किया तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट दैट इसका मैनुअल जो हो टेस्ट का वो मैनुअल बहुत ही एलैबोरेट हो. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वन ऑफ आल्सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस टेस्ट बिकेम सो पॉपुलर. हम लोग जब भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में या कोई भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मैनुअल इज लाइक द बाइबल ऑफ द टेस्ट. बिना मैनुअल के हम लोग कभी भी टेस्ट नहीं करते. इनफैक्ट यही रीजन था कि 2010 में व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तभी हम लोग सोचते थे कि जल्दी ऐसा आएगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सारे रोबोट्स होंगे. द सिंपल रीजन बिकॉज हम लोग एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं कर सकते. यू हैव टू रिमेम्बर दिस ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स. जैसा इंस्ट्रक्शन है वर्बैटिम वैसा ही इंस्ट्रक्शन देना है. अगर आप इंस्ट्रक्शन में गलती करते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं. रट्टा मारना होता है इंस्ट्रक्शन वैसे के वैसे, ना एक वर्ड कम ना एक वर्ड ज्यादा. तो वो हम लोग आदत से हम लोगों को वो बन जाती है चीजें कि कौन सी टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर करनी है, कौन सी टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर करनी है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं. So all that we by heart from the manual, which is why we consider a manual as the Bible of any test. We never go by our own language. बिकॉज जब हम लोग अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं टेस्ट टेकर को या तो फिर कम इंफॉर्मेशन देते हैं. लेकिन जब मैनुअल की लैंग्वेज यूज करते हैं इट इज ऑलवेज दैट वी आर गिविंग द एग्जैक्टली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, सॉरी टू द टेस्ट टेकर. क्लाइंट भी कहा जाए लेकिन टेस्ट टेकर. सो विच इज व्हाई वी गो बाय द मैनुअल फॉर बोथ स्कोरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज interpretation of the test. Cool. Clear so far guys? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है अभी तक मैंने जो बताया उसमें? हेलो. No, ma'am. तो जो भी आपको प्रैक्टिकल पेपर सिखाएगा, बाय द वे यू गाइस नो दैट देयर इज अ वीडियो दैट आई हैव ऑन YouTube ना ऑन प्रैक्टिकल पेपर्स. Yes, ma'am, you told us. या तो एक है 2 घंटे का वीडियो है जहाँ पर मैंने पूरा वो प्रैक्टिकल पेपर्स जो भी होते हैं अपने एमए के
वो सारे एक्सप्लेन किए हैं। उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप चैट में पूछ सकते हो, so that because that video was made many years back, I guess 4 years or 5 years back. उसके बाद में मैंने उस वीडियो को कुछ नहीं किया है। So in case any query has been is there, please add. उसमें जो थीसिस के चीजें कुछ रिवाइज हुई है, बिकॉज पहले थीसिस हम लोग पहले सिनॉप्सिस हम लोग यहाँ पर सबमिट करते थे, अपने रिसर्च गाइड को सबमिट करते थे स्टडी सेंटर पे। अब हम लोगों का जो सिनॉप्सिस है वो बेसिकली मेन कैंपस जाता है, इग्नो के मेन कैंपस हेडक्वार्टर्स जाता है दिल्ली में। But anyways, that is not a cause of your concern right now because that is going to happen only in the second year. I was just adding the information. Nevertheless, we will talk about it later. Concept of IQ. Dheeraj, if you could please take it up, little. Yes. Thank you. So MA divided by CA into 100 explain किया था मैंने, and ये जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं स्टैनफोर्ड बिने के टेस्ट से आया था, बिकॉज उससे पहले हम लोग सिर्फ इतना देखते थे कि कौन से मटेरियल चार्ज है, कैसे क्या है। तो देन द फॉर्मूला वाज गिवन इन बाय स्टैनफोर्ड बिने, नॉट बाय अल्फ्रेड बिने, बाय स्टैनफोर्ड बिने, ठीक है, जहाँ पे टर्मिनल मेरिल इसमें ऐड हुए थे। So Terman incorporated this concept in 1916 to Stanford Binet, and this was the formula that was given by Terman. अल्फ्रेड बिने के टेस्ट को सिर्फ फॉर्मूला टर्मन ने दिया, टेस्ट अभी भी अल्फ्रेड बिने की ही थी। क्लियर, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। फॉर्मूला टर्मन और मेरिल ने दिया है, सॉरी स्पेशली टर्मन ने दिया है IQ इक्वल्स MA डिवाइडेड बाय C into 100, लेकिन टेस्ट अल्फ्रेड बिने की थी। क्लियर? Yep. Yes. Okay. वर्ल्ड वॉर 1 एंड आर्मी पर्सनल सिलेक्शन, एज आई सेड कि सबसे ज्यादा IQ टेस्ट का कभी यूज किया गया है तो वो रिक्रूटमेंट के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के रिक्रूटमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज हुआ है। सो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये दो टेस्ट होते थे और इनको ग्रुप टेस्ट में दिया जाता था। ग्रुप टेस्ट एंड इंडिविजुअल टेस्ट वो टेस्ट जो आपको कंपलसरी इंडिविजुअली ही अप्लाई करनी है, आप उसको ग्रुप में नहीं दे सकते। तो ऐसे कौन से टेस्ट है जो आप ग्रुप में नहीं दे सकते? टैट और कैट, ये दो एग्जांपल्स मैं बता सकती हूँ। और बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जो आप इंडिविजुअली दे सकते हो, ग्रुप में नहीं दे सकते, बट आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल्स ऑफ टैट एंड कैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट एंड चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। क्योंकि when we are writing the stories, we cannot write 10 stories at a time, right? 10 लोग आपको 10 कहानियां बता रहे हैं, आप कितने लोगों के स्टोरी पे ध्यान दोगे? It will impact the administration of the test. So टैट कैट जो टेस्ट है वो सिंगल बंदे पे एडमिनिस्टर होती है, 1 person at a time. बट KBI हो गई या फिर KBI भी नहीं, इनफैक्ट the current version of KBI we still administer on one-on-one, we do not administer in group, but MMPI हो गया, ठीक है, विस्क हो गया, जिसका जो वर्बल वगैरह क्वेश्चन है वो हो गया। तो वो जो टेस्ट है वो हम लोग ग्रुप सेटिंग में भी दे सकते हैं। क्लियर? एनी क्वेरी सो फार? Hello. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay. Dheeraj, if you could please pull it up. Yeah, the major intelligence test. So individual test and group test, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट बेसिकली हम लोग कैसे टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं उसी के ऊपर ये डिफरेंशिएशन किया गया है। इफ वी कैन एडमिनिस्टर इट इन one-on-one और वी कैन एडमिनिस्टर इट इन ग्रुप्स। कोई भी टेस्ट जो हम लोग ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, दोस आर कॉल्ड एज ग्रुप टेस्ट, जहां पर हम लोगों को फोकस नहीं करना होता, हम लोगों को सिर्फ ये देखना होता है कि कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है एक दूसरे से। that can be, all those tests can be administered in groups, but जहां कहीं भी हम लोगों को
क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज देखनी है, फेशियल एक्सप्रेशन देखने हैं, इंडिविजुअल अटेंशन देखना है, नोट्स बनाने हैं, it is always better that we are doing it one on one. तो अगर ऑनलाइन करियर सिलेक्शन है तो दैट कैन हैपन इन ग्रुप, बट अगर वन ऑन वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट हैज टू हैपन इंडिविजुअल, वन पर्सन एट अ टाइम. Any Yes, doubts, ma'am. guys? Any queries? Okay. Verbal and non-verbal test. We also call this non-verbal test as performance test, बिकॉज हम लोग ने ये देखा कि कई बार लैंग्वेज बैरियर आ सकता है. हो सकता है कि जिस लैंग्वेज में आपने टेस्ट बनाई हो, उनको वो लैंग्वेज आती ना हो, तो क्या करेंगे हम लोग? उनका IQ मेजर नहीं करेंगे या हम लोग उनकी एबिलिटीज मेजर नहीं करेंगे. तो इसकी वजह से हम लोग ने परफॉर्मेंस टेस्ट बनाए. उसके अलावा एक और रीजन ये था कि वी हैड फाउंड दैट देयर वर सर्टेन limitations that people had. Okay. लेकिन इंस्पायर फॉर एग्जांपल स्लो लर्नर्स या डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, या डिसलेक्सिया, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस IQ कितनी आती है और वर्बल IQ कितनी आती है. अगर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसके वर्बल IQ में और परफॉर्मेंस IQ में, दैट मीन्स द चाइल्ड इज केपेबल, चाइल्ड के पास कैपेसिटी है, बट उसमें उसकी जो वर्बल इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस कम है. तो विच मीन्स वी हैव टू चेक कि लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्यों नहीं डेवलप हुई है. अब लिंग्विस्टिक एबिलिटी न डेवलप होने की वजह 2-3 हो सकती है, नॉट जस्ट अ लर्निंग डिसेबिलिटी. ये भी हो सकता है कि बच्चे को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, एक्सपोजर कोई नहीं है, बच्चे ने खुद पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, तो अटेंशन कम है. दूसरी चीज ये हो सकती है कि अचानक मीडियम चेंज हो गया बच्चे का, बच्चा कोई और मीडियम में पढ़ रहा था, हम लोगों ने उसको उठा के कोई और मीडियम में डाल दिया, तो बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा. तीसरी वजह उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है. तो जब तक हम लोग बाकी चीजें एटलीस्ट 6 महीने तक का रेमेडिएशन नहीं देते, रेमेडियल एजुकेटर्स होते हैं जिसके पर काम करते हैं, धीरे 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 तारे जमीन पर अगर आप लोगों ने देखा है तो निकुम सर वाज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ रेमेडियल एजुकेटर. Apart from doing his artwork or whatever, he was acting with as a remedial educator with Darshil Safri. तो क्या कर रहे थे कि भाई पेंट से बनाओ A, या क्ले से बनाओ A, या उसको उसकी उंगली से करवाओ, A कैसे लिखते हैं, D कैसे लिखते हैं, D और B में क्या डिफरेंस है. So that is what a remedial educator does to see what is the capacity of the child, बच्चा कितना डेवलप करता है. So ऐसा नहीं होता कि remedial education is the remedial educator has a magical wand. Okay. ऐसा नहीं होता कि अच्छा remedial educator पढ़ाएगा तो जो learning disabled बच्चा है वो अचानक normal हो जाएगा. So that learning disability will still be there, but उसका impact बच्चे पे कम हो जाएगा. So anything that the child has to do with too much of literature reading and too much of writing and stuff, the child is going to have challenge if the child is having a learning disability. Audio books and all will certainly help the child. Audio books or kind of voice to write answers, ये features जो होते हैं वो learning disabled बच्चे को 100% help करेंगे. But we generally do not recommend students unless they are themselves very interested or passionate about taking academic related careers. अगर कोई बच्चा है डिस्कैल्कुलिया है, उसको उसने मेहनत की, वैदिक मैथ सीखा, ये सीखा, वो सीखा, और उसने खुद को डेवलप किया, और वो कहता है कि मैं मैथ्स का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और मैं मैथ्स का ही प्रोफेसर बनूंगा, मैं कुछ और नहीं बनूंगा, देन वी विल नॉट डिसुएड द चाइल्ड. वी विल नॉट से हे हेलो यू हैव डिस्कैल्कुलिया, यू कांट डू दैट. ये हम लोग मना नहीं करते हैं बच्चे को, बट बच्चे को इस बात का एहसास जरूर दिलाया जाता है कि बेटा आपके लिए ये मुश्किल है. आप अगर लोगों को इट इज लाइक क्लाइंबिंग अ प्लेटू, फॉर यू इट विल बी लाइक क्लाइंबिंग एन एवरेस्ट. So please see if you are really wanting to sign up to that. And if the kiddo is still wanting to sign up for it, we allow the child to sign up. If the child fails in it, we still acknowledge and appreciate the efforts taken by the child. ठीक है, आप फेल हो गए, वो तो आपके बस की थी भी नहीं, आपके लिए वो बहुत चैलेंज था, बट फिर भी द गुड थिंग इज कि आपने उस चैलेंज को उठाया और उस चैलेंज को करने की कोशिश की. वो अलग बात है कि आपसे नहीं हो पाया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम.
बट इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजे बंद हो गए, लेट्स लुक एट सम अदर करियर. That's how we deal with some kids who are very passionate about, because कुछ वक्त कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड उसको अपने सेल्फ वर्थ पे ले लेता है कि यार मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझसे वो नहीं हो पा रहा, तो चाइल्ड अपने सेल्फ वर्थ पे ले लेता है और फिर वो अपनी जिद करने लग जाता है कि नहीं मैं तो ये करूंगा, मैं तो मैथ्स करूंगा, मैं तो साइंस करूंगा, कैसे नहीं हो पाएगा. तो ऐसे में हम लोग बच्चे की जिद नहीं तोड़ते हैं. वी डोंट पुट हिम डाउन, we only allow him to we only remind him that dude, this is going to be difficult for you, and we still allow the child to do it. Cool so far? Any queries, any doubts? No, ma'am. No, ma'am. So कई बार ऐसा होता है कि खासकर अब जब हम लोगों की एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनईपी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वन, थैंक्स टू डॉक्टर कपिल सिब्बल. वहां पर हम लोग क्या किए थे कि 9th स्टैंडर्ड तक बच्चे पास कर दिए थे. एंड अगर आप लोगों में से कोई स्कूल काउंसलर रहा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को के ऊपर अटेंशन कम दिया गया है और उसके बाद में हम लोगों ने बोल दिया कि बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है. दैट्स नॉट ट्रू. The kid is never learning disabled. You have identified the child incorrectly. उसके साथ रेमेडिएशन स्टार्ट करो. विद इन 6 मंथ बच्चा इम्पैक्ट दिखाने लग जाता है, बच्चा असर दिखाने लग जाता है. एंड ये कैसे पता चलता है कि जब हम लोग उसकी टेस्ट करते हैं, वर्बल वर्सेस परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, तो परफॉर्मेंस हमेशा हाई होता है, वर्बल लो होता है. एंड वर्बल लो होने के 3 रीजंस मैंने आपको बताए थे कि एक तो मीडियम चेंज, या तो एक्सपोजर की कमी, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल रहा बच्चे को. एंड ऑब्वियसली इंडिविजुअल अटेंशन तब जरूरी होता है बच्चा जब सेल्फ मोटिवेटेड ना हो एंड उसको अप्रिसिएशन भी ना मिलता हो. सेल्फ मोटिवेटेड है बच्चा और वो कर रहा है, फिर भी उसको अप्रिसिएशन ना मिले तो हो सकता है उसका मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा. एंड थर्ड इज लर्निंग डिसेबिलिटी. इन तीनों चीजों के ऊपर रेमेडियल एजुकेशन बहुत बढ़िया काम करता है एंड इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स. क्लियर गाइस सो फार? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay. Can we move to the next types of intelligence test? Types of intelligence skills. Yeah. Dheeraj, if you could please pull it up. Dheeraj, are you there? Yes, ma'am, I'm already doing it. Acha, okay. Maybe it is going to take time for me to read. Okay. So, yes. Stanford Binet test is one of the most popular. While Terman gave the formula MA divided by CA into 100 is the IQ score of the person on the Alfred Binet scale. टर्मन एंड मेरिल जिसे मैंने कहा था, तो मॉड मेरिल जो 1937 में जिन्होंने स्टैनफोर्ड बिने पे काम किया, उन्होंने 2 और फॉर्म्स जोड़ दिए. जो अल्फ्रेड बिने पहले कितने सवालों का था? अल्फ्रेड बिने जो ओरिजिनल टेस्ट थी उसमें पहले कितने सवाल थे? याद है गाइस? हम लोगों ने देखा है इसको. नहीं याद आया? अल्फ्रेड बिने की जो टेस्ट है उसमें कितने सवाल थे? Dheeraj, Ambili, do you remember how many tests, No, how many ma'am, questions? don't remember. Okay. Okay. So that the original test had 30 questions. Okay. Yes, Ambili 30, right. So the original test had 30 questions and Merrill and added 2 more forms with each with 129 items. Okay. So L form also had 129 items. M form also had 129 items and the original test had 30 items. So anyways, the third revision of Stanford and Binet came after Terman's death in 1960 and was constructed primarily by Merrill, which is when it started being known by Terman and Merrill test also. Okay? But अभी भी अगर हम लोगों को famous test के तौर पे देखना है, तो we go for KBI, that is the Indian adaptation of Stanford Binet. उसके बाद विस्क 4 देखते हैं हम लोग, विस्लर्स इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन.
या वेस्ले एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। टर्मन एंड मेरिल हम लोग इतने पॉपुलरली यूज नहीं करते हैं, दैट इज जस्ट अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, but yes, it is one of the tests that we had made. I mean, Terman and Merrill had made. So we will just know this, what exactly this test was and how this was adapted. Oh, sorry, this was revised. But then this was one of the tests which is not so popularly used. Okay. Okay. So that the Stanford Binet test I, as I said, it was had 30 questions, but then this form L and M was very different from the original test and included the deviation intelligence question, which means कि अगर 100 एक एवरेज माना जाता है तो 16 का प्लस एंड माइनस को भी हम लोग नॉर्मल में ही पकड़ेंगे। तो 16 का प्लस एंड माइनस मतलब IQ हम हाइट 84 टू 116, इसको भी हम लोग नॉर्मल में ही पकड़ेंगे। ये नॉर्म जो दिया वो हम लोगों को मेरिल ने दिया कि 84 टू 116, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 16 ये माना गया with this of 100. Okay. The fourth revision of Standard Binet, the Stanford Binet Intelligence Scale came in, the fourth version came in 1986, and this retained the form of L&M edition. जो LM एडिशन में जितने भी सवाल आए थे 129 सवाल जो आए थे हर फॉर्म में, उसको रिटेन किया गया। Cool guys, clear so far? Any queries, any doubts here? No, ma'am. Okay. फिर the greatest advantage of fourth edition and the fifth edition was the fourth edition was based on hierarchical model of intelligence. What is hierarchical model of intelligence? Basically to understand कि किस तरीके से हम लोग अपनी IQ डेवलप करते हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज डेवलप होती है। So which were the areas that were assessed? Verbal reasoning was assessed, abstract or visual reasoning was assessed, quantitative reasoning was assessed, and short-term memory was assessed. Okay, so verbal reasoning, abstract or visual reasoning, quantitative reasoning, and short-term memory. These 4 areas were assessed. The fourth edition not only provided an IQ but also composite score. So composite score is related to these two. That is what we have studied in Terman and Merrill. Furthermore, to establish a basal level, एक subtest create की गई थी। सबटेस्ट इज अ टेस्ट जो एक एंसिलरी यूनिट होता है, छोटे से यूनिट होता है एक बेसल लेवल डेवलप करने के लिए। आप लोगों को याद है कि अल्फ्रेड बिनेट का हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है? डज एनीबॉडी रिमेम्बर? आई हैव डिस्कस दिस ट्वाइस। तो किसी को याद है? अगर 10 साल का बच्चा है तो हम लोग अल्फ्रेड बिनेट या कामत बिनेट के कौन से सवाल उसको पूछेंगे? मैम 8 years से 8 years, 2 साल पहले जाएंगे हम लोग। जी सर। Yeah, -2 and we'll go forward till he 3 continuous wrong answers. बिल्कुल बिल्कुल, अपवर्ड लेवल वो होगी कि जहां पर 3 गलत सवाल दिए हम लोग वहीं पर स्टॉप कर देंगे। चाहे बच्चा 10 साल का हो, 8 सवाल की उम्र में अगर वो 3 कॉन्सिक्यूटिव गलत जवाब देता है, विल स्टॉप एट 8, 9 पे देता है, विल स्टॉप एट 9, 15 पे देता है, विल स्टॉप एट 15, बिकॉज देन 15 becomes the mental age of the child even if the chronological age is 10. Yeah, cool. Yes, ma'am. Okay. So then the latest version of Stanford Binet, that is the 5th stage 5, was little different in theoretical structure, and Stanford stage 5 जो है इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बट हम लोग ये जरूर देखते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में कि हम लोगों को जो IQ टेबल है वो IQ टेबल स्टेज 4 स्टेज 5 से आया है। इफ यू रिमेम्बर द IQ टेबल, जहाँ पर हम लोग बताते हैं कि किस IQ के लोगों को हम लोग मोरॉन कहेंगे, किस IQ के लोगों को हम लोग इम्बिसाइल कहेंगे, किस IQ के लोगों को हम लोग इडियट कहेंगे। ये सारे जो टेबल्स हैं और उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो 4th रिवीजन और 5th रिवीजन पे आया है।
clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Guys, any doubt? Okay. Breast is the CSC factors and all is just a good to know information. ये आपको एग्जाम में अगर सवाल आता है तो बस उतना कंटेस्ट करना जरूरी है, उसके अलावा इसको कोई नहीं पूछेगा कि nobody is ever going to ask कि अच्छा फिर स्टेप 4 क्या था, फिर स्टेप 5 क्या था, फिर क्या मेजर्स हुए. Nobody will ask you ever in any interview or anything of that sort. This is just a good to know information. Okay. Unless you are doing a research on Kamat Binet and Stanford Binet and you want to revise that test, ये आपके लिए याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए इसको याद रखें आप. The 5 CHC factors that measures that SB5, that is Stanford Binet 5 measures are fluid reasoning. ठीक है. फ्लूइड रीजनिंग इज कि आप जैसे जैसे रीजनिंग एबिलिटी है आपकी, उसको आप कैसे अडेप्ट करते जाते हो एज पर द एनवायरनमेंट. हाउ डू यू grow and how do you mature in reasoning as per the environment, as per the situation, is called as fluid reasoning. Knowledge and quantitative reasoning, yeah, it's given an example. ठीक है. Visuospatial reasoning, working memory, and together these subtests yield an overall estimate of cognitive functioning. तो देखिए, जब तक 30 क्वेश्चंस वाला सवाल था, इट वाज इजी फॉर पीपल टू जस्ट गेट एंड डू अवे विद. बट 129 प्लस 129, so somewhere around 260 सवालों के जवाब प्लस 30, so 290 सवालों के जवाब. द टेस्ट हैड बिकम टू बिग. तो कई बार हम लोगों के पास जब वक्त नहीं होता था तो इस सब टेस्ट से हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे. दैट वाज व्हाट वाज डन इन द पास्ट. Okay, which is why subtests are made to have the shortened version of the test. Okay. Clear so far? Yes, ma'am. Yes. I would want And you then people to subtest will have how many questions? डिपेंड करता है सब टेस्ट के ऊपर कितने क्वेश्चंस होते हैं. इट कैन हैव 30, इट कैन हैव 50, डिपेंड्स अपॉन द पीपल हु आर डिजाइनिंग द टेस्ट. बट नॉर्मली 1/10 या 1/4 या 1/5 के से रखते हैं टेस्ट, मतलब सवाल. So if that has 250 or 260, we will keep it maximum to 50. उससे ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग. Maximum would be 1/4 or 1/5. Okay, because here it says for total of 10 subtest. So Yes. does that mean like 50 यहाँ and पे 5 सवाल हर सब टेस्ट के पूछ सकते हैं. yeah. Okay. But we will not. This is as I said कि हम लोग SB5 कभी नहीं देख पाएंगे because now SB5 इतना कोई यूज भी नहीं करता. Especially इंडिया में तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता. And even if you go abroad, the Kamat Binet is used. I mean Stanford Binet is used only for अगर हम लोग को ये डिफरेंशिएट करना है कि बच्चा नॉर्मल आईक्यू है या स्लो आईक्यू है, तभी हम लोग कामत बिने या अल्फ्रेड बिने यूज करते हैं, सॉरी स्टैनफोर्ड बिने यूज करते हैं. मेजरली हम लोग विस्क और वेज ही यूज करते हैं. ठीक है. विस्क वेज है, फिर MCMI है. दीज आर द टेस्ट विच आर यूज वेरी कॉमनली फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. So any queries with this table, guys? Table wouldn't be asked in exam, right? I mean, it's just for good to know knowledge. Unless, yes, good to know knowledge. Unless इसके बारे में कोई वर्जन्स आपको सवाल आता है कि वर्जन्स ऑफ स्टैनफोर्ड बिने, only then at least writing this would be important. Verbal क्या, non verbal क्या है, that is important. But अगर ये आता है तो ये 15-20 सवाल का मार्क्स का आएगा. तो इसमें फिर टेबल एक्सपेक्ट किया जाएगा. और नॉर्मली हम लोगों ने जितना भी देखा है अभी तक, वो 10-15-20 वालों का आता नहीं है मार्क्स. ये सिर्फ 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. देयर आर 10 क्वेश्चंस, सॉरी 10 मार्क क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस, जिसमें पेपर खत्म हो जाता है. नहीं 10, हाँ राइट. आई थिंक 50-50 का वेटेज है ना गाइस. प्लीज रिमाइंड मी क्या है इसका वेटेज, कैसा है थियरी एंड इसका असाइनमेंट्स का. धीरज, यश, किसी को याद है वेटेज कैसा है? I guess 50 का ही है. I'm not 50-50 का ही है. sure. तो 5 सवाल आएंगे 10-10 मार्क्स के, और 2-3 सवाल एक्स्ट्रा होंगे उसमें, जिसको आप ऑप्शनल पे छोड़ सकते हो. एंड बाकी जो सवाल होंगे दोस वुड बी
10 मार्क्स क्वेश्चन, और 50 में से आपको जितने भी मिलता है, सो सपोज somebody gets 30 आउट ऑफ 50, ठीक है, इन योर एग्जामिनेशन, तो वो 30 के 30 पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर आपको 70 मिलते हैं आउट ऑफ 100 असाइनमेंट में, तो उसका 50% पकड़ा जाएगा। तो 35 एंड 30 मतलब 75 आउट ऑफ 100 मिले हैं आपको, तो सॉरी 65 आउट ऑफ 100 मिले हैं आपको। टोटल स्कोर जो आपका पेपर 1 का बनता है दैट इज 65 आउट ऑफ 100, क्योंकि जो आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स में आपको जितने भी स्कोर्स मिलते हैं उसको आधा कर दिया जाता है। दैट इज हाउ द मार्क्स वर्क। Anyways, guys, can we move ahead? If this table is done, if you have no queries on the table. If you have no queries on the table, can we please move ahead? Any queries on the table, guys? No, ma'am. Okay, so can we please move ahead, Dheeraj? Ma'am, I am on below the table only, scoring and interpretation. Acha. Okay. Thank you, Dheeraj. So, yes, so SB5 can be hand scored. Okay. When we say hand scored, what do you mean by is scored manually? अभी कुछ टेस्ट के सॉफ्टवेयर भी आए हैं, जैसे रोशाक का एक सॉफ्टवेयर है, वी कैन इजीली स्कोर इट विद अ रोशाक सॉफ्टवेयर। तो कुछ टेस्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ हम लोग उनको यूज करते हैं, या तो फिर वी कैन स्कोर इट मैन्युअली। कोई भी टेस्ट के रिजल्ट देने के लिए हम लोग को 7 दिन का वक्त दिया जाता है। तो अगर मैं यश की टेस्ट लेती हूँ और मुझे यश कहता है मुझे स्कोर दो, तो आई कैन टेक 7 डे टाइम। जैसे पैथ लैब में हम लोग 24 आवर्स या 48 आवर्स का टाइम देते हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल फ्रंट में हम लोगों को टेस्ट का स्कोर देने के लिए हम लोग 7 दिन का टाइम ले सकते हैं, स्पेशली विद अ मैनुअल स्कोरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर है तो फिर हम लोग स्कोरिंग तो तुरंत हो जाती है, बट इंटरप्रिटेशन में फिर भी 3 दिन का वक्त हम लोग ले सकते हैं। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. मैम, तो ये Yes. सब टेस्ट के लिए टाइम पीरियड सेम होता है या हर एक टेस्ट को अलग अलग होता है? सब टेस्ट सिर्फ एक मॉक टेस्ट की तरह इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मली सब टेस्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता अनलेस इट इज एडेड विद द मेन टेस्ट। It's just a time saving device when you have to do something in a very quick turnaround situation. That's the time where we do sub test, but ऐसा rarely होता है कि आपने sub test दिया और छोड़ दिया। ओके, You always complement the sub test with the main test. ओके, ओके मैम। So हाँ बोलिए। असाइनमेंट का वेटेज 30% है फॉर ईच कोर्स। 30% है ना? यस मैम। ओके ओके। और एंड मैम टर्म एंड एग्जाम का 70%, लाइक टर्म एंड एग्जाम का लेटेस्ट। 70%, राइट। सो हम लोग उसका 30% निकालेंगे, हम लोग 50% नहीं निकालेंगे, हम लोग 30% निकालेंगे। So suppose somebody has scored 70 out of 100 in the assignment, then you have to, the actual score that you have got on assignments is 30% of 70. Okay. And जो भी आपको मार्क्स मिले हैं आपके एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, उसका 70% वेटेज पकड़ा जाएगा। सो 70% ऑफ दिस एंड 30% ऑफ दैट, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, दैट विल बी योर फाइनल स्कोर फॉर दैट पेपर। दैट इज हाउ इग्नो वर्क्स आउट। क्लियर गाइस? बात समझ में आई कि कोई क्वेरी है इसमें? नो मैम। ठीक है, अगर किसी बच्चे को 40 मिले हैं आउट ऑफ 50, तो उसका सिर्फ 70% पकड़ा जाएगा। और अगर किसी को 70 मिले हैं आउट ऑफ 100 असाइनमेंट्स में, तो उसका सिर्फ 30% पकड़ा जाएगा। तो 30% असाइनमेंट का स्कोर, 40% सॉरी 70% एग्जाम का स्कोर, इन दोनों को एड अप करके जो टोटल आएगा दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। क्लियर ऑन दैट? यस मैम। Okay. Any doubts, any queries in terms of subtests so far?
No, ma'am. Now the scoring and interpretation is little on the technical side. We basically the subtest scores form 4 composite scores. कौन से composite scores है ये? factor index. ठीक है, factor index means कोई भी जो factor हम लोगों ने यहाँ पर consider किया है वो factor IQ में कितना importance रखता है. अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो उसका फैक्टर इंडेक्स हाई होगा, और अगर वो कम इंपॉर्टेंस रखता है आईक्यू में तो उसका फैक्टर इंडेक्स लो होगा. सो टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम लोग आर्मी पर्सनल को रिक्रूट कर रहे हैं और हम लोग रिएक्शन टाइम मेजर कर रहे हैं तो वहां पर रिएक्शन टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका फैक्टर इंडेक्स हाई होगा. बट अगर हम लोग रिएक्शन टाइम मेजर कर रहे हैं लेक्चरिंग में, टीचिंग में, तो उसका वहां पर फैक्टर इंडेक्स इतना हाई नहीं होगा. इट मे नॉट बी वेरी लो, it may be somewhere around the medium, but it will not be that high as much as an army personnel. ये समझ में आया? मैम, तो हाँ, फैक्टर इंडेक्स जो टेस्ट ले रहे हैं वो डिसाइड करते हैं या इट इज प्रिडिक्ट? जो स्कोर कर रहे होते हैं वो डिसाइड करते हैं. जो एक्चुअली जो फैक्टर इंडेक्स बना के आता है, जो टेस्ट बनाते हैं उन लोग फैक्टर इंडेक्स, फैक्टर एनालिसिस करके फैक्टर इंडेक्स बनाते हैं. बट उसका फैक्टर इंडेक्स का स्कोर क्या होता है और वो कैसे करना है वो मैनुअल में लिख कर आता है कि अगर बच्चे ने ये स्कोर किया तो उसका फैक्टर इंडेक्स ये होगा, उसका डोमेन स्कोर ये होगा, उसका एब्रिविएटेड स्कोर ये होगा, उसका फुल स्केल स्कोर ये होगा. ये आपको लिख कर आता है मैनुअल में. तो आपको बस वो टेबल देखना होता है. ओके फाइन. और उसका रॉ स्कोर ये है तो उसका फैक्टर इंडेक्स स्कोर क्या है या डोमेन स्कोर क्या है. बट एज आई सेड दिस इज ऑल अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन बिकॉज नाउ वी डोंट गेट इनटू सो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. वी गो ओनली एज पर रॉ स्कोर एंड स्टेन स्कोर. कुछ टेस्ट हैं जिसमें हम लोग सिर्फ रॉ स्कोर और स्टेन स्कोर देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आप लोगों की टेस्ट है, आई थिंक इट इज SVIB, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक. ठीक है, SVIB है ना आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में? SVIB है या कोई और एक टेस्ट है? एनीवेज, एक टेस्ट है जहां पर हम लोग IQ मेजर करते हैं, और IQ हम लोग मेजर करते हैं बाय filling up that by filling up that form which has a lot of patterns, and that patterns become very it becomes difficult with more and more subtest. ठीक है, पहले सब टेस्ट के साथ उसके फैक्ट जो पैटर्न्स होते हैं वो आसान होते हैं, फिर दूसरा उससे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट, फिर चौथा, फिर पांचवा. ठीक है, तो ये 5 सब टेस्ट है उस पर्टिकुलर इसमें. तो पांचवे का स्कोर क्या माना जाएगा और फर्स्ट का स्कोर क्या माना जाएगा, दैट विल बी रिटन ऑन द मटेरियल. You just have to put as per the STEM scores. You don't have to worry so much about factor index क्या है, domain index क्या है. This is just a good to know information. But what you need to know is you have to use a manual before scoring and interpreting. आपको याद है मैं कर लूंगा? Never do any scoring or interpretation without a manual. क्योंकि कभी कभी एक दो नंबर से हम लोग भूल जाते हैं, गलती हो सकती है. Nevertheless, और मैम, ये मैनुअल और टेस्ट का ये सब हम लोग को प्रैक्टिकल केस में प्रोवाइड किया जाएगा या हम लोग को कहीं और से लेना होगा? हम लोगों के टाइम पे हम लोग ने टेक्स्ट टेस्ट का सारा जुगाड़ किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक कॉपी रखी हुई थी अपने स्टडी सेंटर पे कि हम लोगों के तो काम आ गया, नेक्स्ट जनरेशन के काम आए. ठीक है, तो अभी वो पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होता तो नॉर्मली हमारे जो फैकल्टीज होते हैं वो बेचारे अपने अपने टेस्ट लेके आते हैं कि बच्चे सीख लें. ओके. सो लेट्स सी जो आपके प्रैक्टिकल्स, बिकॉज हम लोगों की इग्नो के साथ इसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि भैया आप 1000 रुपये पर स्टूडेंट चार्ज करते हो, इतने आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो आप हम लोगों को प्रैक्टिकल मटेरियल का कॉस्ट इतना आएगा, तो व्हाई डोंट यू प्रोवाइड. ठीक है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, लेकिन इसका कुछ जवाब आया नहीं. ना इग्नो हेडक्वार्टर से कोई जवाब आया, ना इग्नो स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से कोई जवाब आया. बट फॉर्चुनेटली हम लोगों के फैकल्टीज बहुत अच्छे थे, तो हम लोग को फैकल्टीज ने अपने टेस्ट से के जरिए सिखाया था. So that is why we got saved. Let's see what happens with you guys, and whatever I can
support and I can help, I will always try कि मेरे friends में से किसी के, या I'm still in touch with my faculties, people who taught me, I'm still in touch with them. तो उनके जरिए कुछ हो सकता है क्या? We will always try. Don't worry about that. Okay. What else, guys? Okay. So there are two. Yes, we will be moving to domain. Domain, there are two domain skills: non-verbal IQ and verbal IQ. जो मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस IQ और वर्बल IQ. तो परफॉर्मेंस IQ में हम लोग एक्टिविटीज देते हैं बच्चों को कि भाई ये कंस्ट्रक्ट करो, वो कंस्ट्रक्ट करो, इसको ऐसे चेंज करो, उसको ऐसे चेंज करो. एंड वर्बल IQ में तो जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाते हैं. इट्स अ पेपर पेंसिल टेस्ट, द पर्सन चाइल्ड हैज टू राइट इट. एब्रिविएटेड टेस्ट होता है जहां पर टेस्ट बहुत बड़ा है, जैसे डास टेस्ट के बारे में पता नहीं, अच्छा दूसरे ग्रुप में डिस्कशन हुआ. डास एक टेस्ट है, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल, जो 42 क्वेश्चंस का होता है, लेकिन उसका एब्रिविएटेड फॉर्म ज्यादा यूज होता है, विच इज 21 टेस्ट. सेम टेस्ट को हम लोगों ने शॉर्टेंड वर्जन इस्तेमाल किया है, तो एब्रिविएटेड फॉल टेस्ट यूज होता है. फिर फुल स्केल, तो फुल स्केल इज दैट एंटायर 42 क्वेश्चंस. तो फुल स्केल का स्कोर अलग होगा, एब्रिविएटेड का स्कोर अलग होगा. तो वो आपको मिलता है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू स्कोर. डास 21 पे मेरा स्कोर क्या है या डास 42 पे मेरा स्कोर क्या है, वो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है विज़-अ-वी व्हाट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. कि अगर डास 42 पे ममता का 20 आया है तो इसका मतलब वो डिप्रेस्ड है या नहीं, एंग्शियस है या नहीं, स्ट्रेस्ड है या नहीं. ये डास 42 क्या बताता है और फिर डास 21 क्या बताता है, ये अपने आप आपके पास रहेगा. बस आपको ममता के स्कोर्स नहीं पता होंगे. ममता जब टेस्ट देगी तब आपको ममता के स्कोर्स मिलेंगे. उसको फिर हम लोगों को डास 21 के हिसाब से अलग इंटरप्रेट करना होगा, डास 42 के हिसाब से अलग इंटरप्रेट करना होगा. ये बात समझ में आई? कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन? You want me to repeat what I said? Does anybody want me to repeat what I said? It's clear, ma'am. Clear. ये गलती बिल्कुल मत करना कि डास 21 पे ममता का स्कोर 20 है तो डास 42 पे हम लोग 20 का 40 कर देंगे और यही मान के चलेंगे. नो, दैट इज नॉट हाउ इट इज. फुल स्केल का स्कोर अलग होता है, एब्रिविएटेड का स्कोर अलग होता है. लेट्स कैलकुलेट इट एज पर दैट नॉर्म्स. लेट्स नॉट कैलकुलेट इट एज पर आर नॉर्म्स की. अच्छा, ये 21 है, वो 42 है, तो इसको भी डबल कर दिया. इस तरह से मत कीजिएगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट टुवर्ड्स. ओके. चेंज सेंसिटिव स्कोर्स. चेंज सेंसिटिव स्कोर्स आर बेसिकली काइंड ऑफ, अगर कोई टेस्ट में हम लोगों ने कोई चेंज किया या कोई फैक्टर्स चेंज किए या कोई एनवायरनमेंट चेंज किया या एज चेंज किया, तो उससे स्कोरिंग में जो जो चेंजेस आ जाते हैं, नॉर्म्स में जो जो चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज व्हाट दे आर मेंशनिंग बाय चेंज सेंसिटिव स्कोर्स. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल केबीआई में अगर बच्चा 80 स्कोर कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट बिने पे भी 80 स्कोर करे. The simple reason because KBI is more Indian oriented. जो बच्चा इंडियन ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से स्कोर कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो यूएस एनवायरनमेंट में उतना ही अच्छी तरह से स्कोर करे. So the change sensitive scores are basically those scores which could change because of environmental impact, because of the gender impact, because of the age impact, because of the exposure impact. कई सारे reasons हो सकते हैं इसके लिए. Clear? तो जितना इस टेस्ट को हम लोग ज्योग्राफिकली स्टडी बनाते हैं, ज्योग्राफिकली स्टडी कैसे बनाई जाती है कोई टेस्ट? अगर ममता ने कोई टेस्ट यहाँ पे मुंबई में बनाई और सिर्फ मुंबई का सैंपल यूज किया, तो धीरज उसी टेस्ट को ममता से लेंगे, ममता को एक मेल डालेंगे कि ममता मुझे तुम्हारी टेस्ट यूज करनी है दिल्ली में और मैं दिल्ली का सैंपल यूज करूंगा. तो ममता बोलेगी ठीक है, मुझे रिजल्ट चाहिए, आपको मुझे रिजल्ट शेयर करने होंगे जो भी आपका स्कोर आता है. तो फिर दिल्ली का रिजल्ट और मुंबई का रिजल्ट कंपेयर किया जाएगा. फिर यश बोलेंगे मैं कोलकाता में कर रहा हूँ, तो फिर कोलकाता का. रूपा कहेगी मैं चेन्नई में कर रही हूँ, मैं चेन्नई का. तो अब मेरे पास 4 सिटीज के टेस्ट स्कोर्स आ गए, तो मैं 4 सिटीज के हिसाब से अलग नॉर्म्स भी बना सकती हूँ. बात समझ में आ रही है? Am I going too fast? Am I going too technical? No, ma'am, समझ में. No. Yeah? तो जितना हम लोग उसको ज्योग्राफिकली अलग अलग पॉपुलेशन पे यूज करते हैं,
और जितना हम लोगों के नॉर्म्स हम लोगों के बिल्ड होते हैं उतना हम लोग फिर उस नॉर्म को और इंक्लूसिव बनाते जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुंबई में 100 हाई आईक्यू माना जाता है, दिल्ली में हो सकता है वो 90 हाई आईक्यू माना जाए, चेन्नई में हो सकता है वो 70 हाई आईक्यू माना जाए, कोलकाता में हो सकता है 120 हाई आईक्यू माना जाए। तो हम लोगों को जो रेंज बनानी होती है फिर उसके हिसाब से बनानी होती है कि ओके अगर 65 या 70 के से लेके 125 तक ये रेंज होगी हाई आईक्यू। तो इसका मतलब वो टेस्ट जो है वो ज्योग्राफिकली थोड़ी सी स्टडी हो गई। आई एम गिविंग यू अ लेमैन एग्जांपल, इस तरह से एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ले पर्सन एग्जांपल कि ज्योग्राफिकली स्टडी कैसे बनाते हैं। जितने भी नॉर्म्स हम लोगों को मिलते हैं उसको प्रोसेस करके, सॉरी जितने भी स्कोर्स हम लोगों को मिलते हैं ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन से, उसको प्रोसेस करके हम लोग अलग नॉर्म्स बनाते हैं। लोकलाइज नॉर्म्स अलग होते हैं और ऑल ओवर इंडिया के नॉर्म्स अलग होते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, अमेरिकन नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, इंडियन नॉर्म्स अलग हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो डन। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। या सो अगर बॉडी इमेज है तो बॉडी इमेज के यूएस नॉर्म्स अलग होंगे, इंडियन नॉर्म्स अलग होंगे। Clear है? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर बड़े ही होते हैं मोटी नाटी सुनते सुनते, तो हम लोगों को इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट अभी अभी बॉडी शेमिंग ये वाली सारी चीजें आएंगी, वरना बॉडी शेमिंग वगैरह ये सारी चीजें इंडियन कॉन्सेप्ट में थी ही नहीं। तो पहले होते थे मोटी नाटी काली ये वो दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या नाम हम लोग यूज करते थे बचपन में एक दूसरे को, एंड वी डिड नॉट इवन केयर अबाउट बॉडी शेमिंग देन। बट अगर यही चीज हम लोग किसी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में करें तो हम लोग देखेंगे कि दिस विल बी अट्रीब्यूटेड टू बॉडी शेमिंग एंड द पर्सन कैन गेट इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट, which is why हर एक geographical सिचुएशन में टेस्ट के स्कोर्स वेरी होते हैं, एंड टू मेक द टेस्ट स्कोर्स मोर एंड मोर स्टर्डियर वी इंट्रोड्यूस ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस इन आवर सैंपल्स। और वो टेस्ट उतनी बार रिपीट की जाती है अलग अलग सैंपल्स के साथ। नेवरदलेस, तो दिस इज अबाउट चेंज सेंसिटिव स्कोर्स कि क्यों चेंज स्कोर्स क्यों चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, क्या करना है उसका। इट इज ऑल अबाउट दैट। एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न सो फार? नो मैम। पक्का? क्लियर? वेस्लर भाई साहब की हिस्ट्री पे जाए हम लोग थोड़ा सा। वेस्लर ने बहुत काम किया है, तो इनकी हिस्ट्री पे जाए कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। यस। ओके, तो वेस्लर्स ने 3 लेवल पे टेस्ट बनाए, एक एडल्ट्स, एक चिल्ड्रन और एक प्री प्राइमरी। पहली टेस्ट बनी 1939 में एडल्ट्स के लिए। उसी टाइम पे उन्होंने बच्चों के लिए बनाई, मतलब उसी के आसपास उन्होंने बच्चों के लिए बनाई 1946 में। प्री स्कूल की पहली टेस्ट बनी 1967 में। फिर एडल्ट्स के लिए इसी टेस्ट को रिवाइज किया गया, वेस्लर्स बेलीव्यू को रिवाइज किया गया। इसकी सेकेंड टेस्ट आई 1955 में। फिर दूसरी टेस्ट स्विस की रिवाइज हुई 3 साल बाद 1949 में। एंड जो वेस्लर्स प्री प्राइमरी स्कूल थी वो रिवाइज हुई 1989। तो रिवाइज होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते हैं या जैसे जैसे ज्यादा सैंपल हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा ज्योग्राफिकल स्टडी देखते हैं हम लोग, सैंपल का हेट्रोजेनिटी देखते हैं हम लोग, तो जो जो चीजें हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से या एज को ऐड करने के लिए टू ऐड अप पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज, या एज का सवाल बढ़ाना है। लाइक फॉर एग्जांपल द टेस्ट वाज मेजरिंग ओनली फ्रॉम 6 to 12, तो 6 to 16 करना है। दैट टाइम आल्सो वी कैन रिवाइज अ टेस्ट। हम लोग को उसके नॉर्म्स रिवाइज करने हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे या तो लो स्कोर कर रहे हैं या तो हाई स्कोर कर रहे हैं, तो नॉर्म्स हम लोग को चेंज करने हैं। दैट टाइम आल्सो वी रिवाइज द टेस्ट। Yeah. Any queries, guys? Any queries? Any doubts so far? नो मैम। Okay. So this is how the tests were revised. This is the time the tests were revised on different durations. Adults test
तकरीबन 5 बार रिवाइज हुए एंड वी आर रनिंग इनटू विस 4. सिमिलरली वी आर रनिंग इनटू विस 4. आई थिंक विस 4 भी रिवाइज्ड वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट विस 4 और इज व्हाट वी हैव डन. इसको अगर हम लोगों को सीखना है तो पियर्सन अपने कोर्सेज कंडक्ट करता है. द बेस्ट पर्सन टू कांटेक्ट विद दिस इज धैर्य नहीं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर धवल मोदी. ही इज अ होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट इन साइंस. ही इज सर्टिफाइड पियर्सन ट्रेनर. तो वो अलग अलग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं पियर्सन के. सो इन केस एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग विस 4 और वेज यू में कॉन्टैक्ट, या तो फिर डायरेक्ट पियर्सन से भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जहाँ पर आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई इसकी ट्रेनिंग कब होगी इस टेस्ट की, एंड देन यू कैन जॉइन दैट ट्रेनिंग एंड यू कैन सर्टिफाई योरसेल्फ. तो इसके बाद हम लोग, इसका प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि ये टेस्ट पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इस टेस्ट का स्कोरिंग पैटर्न बताया जाता है कि किस तरह से करना है, फिर आपको एक ये दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, आप उसको स्कोर करते हो, इंटरप्रेट करते हो. बट आपको ये टेस्ट खरीदनी पड़ती है अलग से. जस्ट बिकॉज यू आर सर्टिफाइड ऑन दैट टेस्ट डजंट मीन दैट यू विल गेट दैट टेस्ट. You will have to buy that test differently. Okay. Clear, guys? Any doubts, any queries? No. Yeah, ma'am. So, आप लोग जब सर्टिफाई होते हो किसी टेस्ट के लिए यूज करने के लिए, तो आप उसको अपने रिज्यूम में डाल सकते हो क्योंकि आई एम सर्टिफाइड फॉर यूजिंग दिस टेस्ट, सर्टिफाइड फॉर यूजिंग दैट टेस्ट. And then if the organization is willing to buy those tests, then you can use that test in that premises. Or if you are willing to invest and buy the test, then you can. But then you will have to kind of check out, because some of these tests are very very expensive. Like MMPI is very expensive. WIS4 is very WIS, MCMI. These tests are quite expensive tests. So if you are looking at uh, a regular inflow of clients only, then I would recommend you to buy the test. Otherwise, बस ऐसे curiosity के लिए मत test buy करो. I know some of my friends who bought the test, उन्होंने use नहीं किया, and then they were like wondering कि ये test मैं किसको pass on करूँ, whom should I sell it to or whom should I pass it on to, because they were not using the test. There was no point why they bought it. So always buy a test only when you are going to use it. Always learn a test only when you are going to use it. Otherwise, it's like learning Excel, learning of formulas of Excel. कि आपने Excel का formulas तो सीख लिया, PowerPoint का advanced PPT कैसे बनाना वो तो सीख लिया, लेकिन use ही नहीं किया तो टच छूट जाता है. So always learn the test whenever you are about to implement, and vice versa. If you have learned the test, please look at where you can implement. भले फ्री में implement करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन उस जो आपने सीखा है उससे टच में रहने के लिए आपको वो implement करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Clear? Clear, guys? Any doubts, any queries? Clear, ma'am. Yeah, No ma'am. doubts. Okay. So Wechsler's intelligence scale. Wechsler defined intelligence as a general behavioral term as a capacity to act purposefully, think rationally, and deal effectively with the environment. ये हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा था सबसे पहले जब हम लोगों ने इंटेलिजेंस स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा था, राइट? राइट गाइस, Yes. याद है डेफिनेशन कि भूल गए? गौरी, रूपा, नूर, डेफिनेशन याद है? नहीं, ma'am. नहीं? Okay. Wechsler's intelligence test. Yeah, Wechsler's definition of intelligence is individual ability to think purposefully, act rationally, and deal effectively with the environment. क्या हुआ भाई, एनर्जी काउंट क्यों लो है? धीरज, अंबिली, अमृत, रूपा, गौरी, नूर, यश. एनर्जी, धीरज और यश की आवाज तो फिर भी आती है, बाकी लोगों का एनर्जी क्यों लो है? बोलो.
ये सब लोग म्यूट पे हो, कोई तो अनम्यूट करके बोलो भाई। एनर्जी लेवल क्यों लो है? गौरी क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ आपको। सुन रहे हो? हाँ। बोलो भी यार, मैं से कोई बात भी करो, मैं अकेले बात करते हैं। ओके, so he also believed that intelligence is specific because it is made up of elements or abilities which are qualitatively different and can be measured, okay, from various tests. So factor analysis क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी फैक्टर उस टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। जैसे डिसीजन मेकिंग एक फैक्टर हो गया, तो वो उस टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, फैक्टर एनालिसिस करके रिसर्चर्स फाइंड आउट करेंगे कि कितना वेटेज इसका आया है, कितना वेटेज कम है। रिसर्चर्स फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा फैक्टर कंसीडर करना चाहिए और कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्लियर गाइस? Yes. Okay. The factor analytical researchers of intelligence test scores also suggest that intelligence is composed of specific abilities that form clusters of higher order ability domains. Higher order ability domains means the fact that दो तीन इंटेलिजेंस के एबिलिटीज को हम लोग जब मर्ज करते हैं, then we get a better ability. So for example, decision making ही हम लोग ने consider किया, तो decision making is decision making just one skill or is it an composite of many skills? What do you guys think? It is a Repeat the composition question. of many skills. Yeah, decision making केवल एक skill है या decision making is a higher order ability domain? Is it a composite of more skills? Yeah, more skills. more skills, जहां पर सबसे पहले आप परसेप्शन अटेंशन मायने रखता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना ही नहीं, ध्यान से उसको परसीव किया ही नहीं, तो आप डिसीजन गलत ले सकते हो। Okay? तो whatever is a composite of more skill is called as higher order ability domain. Yeah. Yep. स्ट्रक्चर ऑफ वेस 4, तो स्ट्रक्चर ऑफ वेस 4 मतलब कितने सब टेस्ट हैं इसमें। हम लोग कभी भी प्लीज याद रखिएगा कि एक सब टेस्ट या दो सब टेस्ट लेकर हम लोग उसको हम लोग नहीं जज कर सकते। कुछ पेरेंट्स होते हैं कभी कभी बोलते हैं कि इतने सारे टेस्ट क्यों लेने हैं बच्चे के, बस इतना ही ले लो ना। यू हैव टू टेल देम नो सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। We have to follow a complete protocol. We have to take all the tests together and only then we can function. Otherwise, we cannot. So all the subtest scores, then we will be putting it to the additional final scores and then we will describe कि भाई बच्चे का या adult का IQ क्या है. And IQ is a confidential information. I cannot reveal the IQ of the child unless I have taken the consent. अगर बच्चे का IQ है तो हम माइनर है तो हम लोग उसके पेरेंट को बता सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट हम लोगों को पता है कि जजमेंटल है, कमेंट करेगा, तो हम लोग पहले उसको समझाते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू। टीचर्स को अगर पेरेंट्स ने बताया होगा, पेरेंट्स ने एक वर्बल या राइटिंग रिटन कंसेंट दिया होगा, तभी हम लोग टीचर्स को उसका IQ बता सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। दो इट इज नॉट रिजिडली फॉलोड इन इंडिया बट इट इज अ नॉर्म that we all have to remember as psychologists that even IQ or any for that matter any test, any diagnosis, कुछ भी है, that is a confidential information of that person. We cannot share it randomly. जब we can be booked by it, we can book for it, sorry not by it, we can be booked for it. Okay? So please do not share any information, किसी का भी diagnosis, किसी का भी IQ ऐसे ही share मत कीजिएगा। Yeah. Yes, Okay. ma'am. So guys, we'll just take a 10 minutes break and we'll start again. Would that be okay? Go Okay, through ma'am. whatever Yes. material we have done and let me know in case there are any queries. We'll start in 10 minutes. Okay. Okay. Core test and 5 supplement. Oh, okay. You switch off the recording. Okay. The structure of ways which was released in 2008. इसमें 10 subtests है और 5 supplemental subtests हैं. And with the 10 core subtest which is a full scale IQ.
तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब ये रिपोर्ट में लिख के आता है वो बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि फुल स्केल आईक्यू किया है कि नहीं किया है. With the new WISC 4, the verbal and performance skills from the previous versions were removed and replaced by the index scores. Okay, which is like the general ability index was included, which consists of similarities, vocabulary and information subtest. 3 subtests को मिलाकर एक जनरल एबिलिटी इंडेक्स बनाया गया विस्क 4 में, और उस चीज को हम लोग उसका एक स्कोर देखते हैं. ठीक वैसे ही हम लोग ने वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स बनाया जिसमें हम लोग ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग एंड विजुअल पजल टेस्ट इंक्लूड करते हैं. फिर परसेप्चुअल रीजनिंग बनाया. तो हर एक इंडाइस हम लोग ने मेजर किया है. देयर आर 4 indices. One is verbal comprehension index, second is perceptual reasoning index, third is working memory index, and fourth is processing and speed index. Clear? Any doubts, any queries, guys? No, ma'am. ये इंडाइसेस स्कोर्स हम लोगों को कहाँ से मिले? जो सब टेस्ट थे उन सब टेस्ट को हम लोगों ने कॉम्पोजिट स्कोर्स बना के हम लोगों ने उसके इंडाइसेस बनाए हैं. तो दीस आर द 4 इंडाइसेस हम लोग ने बनाए इन द सेंस द टेस्ट मेकर्स, द पीपल हु हैव डिजाइन्ड WISC 4, they have made this test. Okay, they have made those indices. Now true broad scores can also be generated, which can summarize the general intellectual abilities, but then we don't get into too much of that. We only focus on the full scale IQ, that is FSIQ. Full scale IQ को हम लोग short form में लिखते हैं FSIQ. Okay? Based on these four indices. इसमें से हम लोग 2 इंडाइसेस उठा भी सकते हैं, लाइक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स को अलग से निकाला और वर्किंग मेमोरी इंडेक्स को अलग से निकाला. इसके भी हम लोग स्कोर्स बता सकते हैं इफ द नीड बी, बट दैट इज नॉट व्हाट इज यूज्ड जनरली इन द मार्केट. जनरली व्हाट इज यूज्ड इन द मार्केट इज वी आर लुकिंग एट कि फुल स्केल आईक्यू क्या है किसी भी बच्चे का या किसी भी एडल्ट का. Cool. Dheeraj, if you could please take to things on next page. Dheeraj, if you could please take to the next page. कर दिया. Okay. Not populated for me so far. We'll wait. Ma'am, can you see the next page? Not yet. Okay. Then further, indices of skills हम लोगों ने देखे. Further, we will be looking at the subtests. कौन-कौन से tests होते हैं ways में. There are similarities. Okay. For example, in what way is apple and pear similar? In what way is a dog and cat similar? So similarities से सवाल हो सकते हैं, vocabulary से सवाल हो सकते हैं. What is a guitar? What is justice? What do you mean by honesty? इससे related vocationally vocabulary के सवाल हो सकते हैं. Then information IQ से या general IQ से who is the Prime Minister of India, who is the President of Russia, who is the President of India, ये सवाल हो सकते हैं. फिर comprehension, ये supplemental सवाल है, supplementary test से आता है. So how do you explain certain expressions? ठीक है. काफुर हो जाना का मतलब क्या है, या एक तीर से 2 शिकार का मतलब क्या है. So what do these mean? What do you actually mean by this? जब हम लोग ये कहावतें या ये मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है? That is a part of comprehension. That is a supplemental test. Okay. Supplemental test is always used only for add-on information. जब हम लोग कोई बहुत specific चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, that is the time we use supplemental test. Okay. Perceptual reasoning comprises of 5 tests: block designing, matrix reasoning, visual, and picture completion. Okay. Sorry,
पिक्चर कंप्लीशन भी है एंड फिगर वेट्स भी है। फिगर वेट्स में हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट कुड बी द हेवियर ऑब्जेक्ट, how what is the analogy between these two words, that is how we have perceptual reasoning. Okay? ब्लॉक डिजाइनिंग अपने वो ब्लॉक से रिलेटेड पजल्स देखे होंगे कई बार कि ये 4 ब्लॉक यूज करके ये डिजाइन बनाओ, ये 5 ब्लॉक यूज करके ये डिजाइन बनाओ, दैट्स ब्लॉक डिजाइन. मैट्रिक्स रीजनिंग इज सॉल्विंग एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम. विजुअल पजल्स होते हैं कुछ, जैसे मेजेस वगैरह होते हैं. पिक्चर कंप्लीशन इज अगेन विथ रिगार्ड्स टू अगर 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं तो पांचों ऑब्जेक्ट वहां पर क्या आएगा विच विल कंप्लीट द पिक्चर. एंड फिगर एंड वेट्स एज आई सेड इट इज मोर रिलेटेड टू व्हाट इज मोर हेवियर, व्हाट इज मोर लाइटर, और कंप्लीट द analogy, sorry, analogy. Okay. Then the working memory index is obtained from tree test. Okay. Did I miss on anything? No. Okay. Working memory index is based on 3 test digit span. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 4 to 1 तो आपको बोलना है 1 to 4. तो digit span is if and that I will continue to add on numbers to it. पहले मैं 3 digit number पूछूंगी. I'll keep on adding digits जिसको आपको रिवर्स करते जाना है. एंड ये देखा गया कि नॉर्मली 7 डिजिट्स के ऊपर कोई रिपीट नंबर नहीं कर पाता अनलेस दे डू अ चंकिंग. बहुत कम लोग होते हैं जिसको चंकिंग पता होता है, वही उसको रिपीट कर पाते हैं 7 डिजिट के ऊपर. लेकिन क्योंकि चंकिंग हम लोग ने याद है आप लोगों को मिलर्स नंबर प्लस एंड माइनस 7 देखा था. 7 प्लस और माइनस 2. तो 7 प्लस और माइनस 2 में हम लोगों के पास 7 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे याद रहता है, जब हम लोग उसको चंकिंग कर लेते हैं. मोबाइल नंबर हम लोगों को कैसे याद रहता है, मोबाइल नंबर अगर हम लोग को रिवर्स करने के लिए कहा जाए तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि हम लोग उसको चंक कर देंगे एंड चंक करके हम लोग उसको रिवर्स करेंगे. So that is how that is what digit span measures. Arithmetic, basic math कि भाई अगर हम हमको 100 रुपए दे और हर अमरूद का 25 रुपए है तो आपको 100 रुपए में कितने अमरूद आएंगे. बेसिक अरिथमेटिक इज आस्क्ड. Letter number sequencing, something that we use in our banking exams as well and various other government exams. If Q is 1 and B is 3, J is 2, then what is the next alphabet? का नंबर क्या है, या what is the next letter, या what is the next number? Okay. Clear so far? Any doubts, any queries, guys? Yes, ma'am, it's clear. All these tests are, I mean, it means basically the tests are written, verbal, and some practical, which is those puzzle solving. Verbal includes language, so verbal में अलग से नहीं होता. But then हाँ, if we don't want KBI को मैंने देखा हुआ है verbally भी लोगों को implement करते हुए, where you ask certain questions to the child and you are writing the answers. But WISC मैंने जहाँ किया है WISC 4, वहां पर मैंने सारा कुछ रिटर्न ही लिया, रिटर्न और परफॉर्मेंस. There is no verbal component to it. The verbal component is only the written component. Okay. Yeah. For example, this Dheeraj? comprehension, what does kill two birds mean? Now, are there choices given to the person? No, no. We ask the question. एक तीर से 2 शिकार का मतलब क्या है? Okay. बदला लेने का मतलब क्या है? So we just ask the person. Okay. And then and it's rated 1 or 0. I mean, something like Yes, yes. अगर right, अगर जवाब सही दिया तो 1, अगर गलत जवाब दिया तो क्रॉस, because then there is 1 cross already. अभी हम लोग 3 consecutive गलती ढूंढ रहे हैं. Correct. That is I am talking about कामत बिने. Here इसमें 0 मिल जाता है, विस्क में इसको 0 मिल जाता है, and then हम लोग टोटल स्कोर देखते हैं, उसका टोटल इंडेक्स क्या है और फिर टोटल फुल स्केल IQ देखते हैं. Okay. तो यहाँ पे 1 और 0 काम करता है. कामत बिने में इट इज अ क्रॉस मार्क, 1 क्रॉस मार्क. 3 consecutive क्रॉस मार्क आ गए, टेस्ट बन. क्लियर? Yes, sir. Yes. Dheeraj, if you could please take the page up.
Processing speed index includes 3 tests: symbol search, coding and cancellation. Okay. A symbol search में you have to search a symbol. यहाँ मतलब एक there will be a few lines. जैसे हम लोग WhatsApp पे भी ये मैसेज कई बार देखते हैं कि in this range of V's find a W. Okay. या in this range of W's find a V. तो ये सिंबल सर्च का एक एग्जांपल है. कोडिंग हम लोग जब उसको स्कोर करते हैं किसी भी चीज को कि जैसे a is equal to 1, b is equal to 2, तो z is equal to what और x is equal to what, that is equivalent to coding. कैंसलेशन जहां पर आप वो विजुअल परसेप्चुअल स्पीड देखते हैं, बाकी के सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को हटाकर यू आर ओनली फोकस ऑन द मेन स्कोर और मेन आइटम्स. Interpretation of Wechsler's, we use deviation score of interpretation for an individual score. Deviation score मतलब हम लोग जब standard deviation देखते हैं, okay? फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि 100 अगर किसी ने स्कोर किया है तो नॉर्म क्या है उसका, कौन से नॉर्म में बैठता है वो, 70 to 120 में बैठता है या 80 to 110 में बैठता है, कौन क्या नॉर्म है उसका, उसके हिसाब से हम लोग डिविएशन को कंसीडर करेंगे. क्लियर है सो फार? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? नो मैम. ओके. Right. So waste was standardized on 2,200 people. When I say standardized, उसकी जो reliability और validity score निकाली थी उसको हम लोग standardization कह रहे हैं. ठीक है. तो इस reliability validity कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है आप लोगों ने? रिलायबिलिटी स्कोर, वैलिडिटी स्कोर कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है आप लोगों ने? वैक्सीन टेस्ट हो रहे हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें भी यही वर्ड्स यूज. यस यस यस, सही है. रिलायबिलिटी हम लोगों ने वर्ड सुना है. वैलिडिटी भी सुना है क्या क्लिनिकल ट्रायल्स में? I'm sorry. Validity is when the another lab has confirmed yes, it's the same score or the same efficacy of the vaccines. ओके ओके, तो मतलब आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों टर्म सुने हैं. कूल. सो वैलिडिटी इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज आल्सो द सेम. जैसे अगर हम लोग कोरोना वैक्सीन की बात करें तो एक लैब कहता है कि हाँ भाई ये कोरोना हील करता है, दूसरा लैब कहता है अरे कोरोना नहीं ये सिर्फ फ्लू हील करता है. देन द वैलिडिटी इज नॉट दैट हाई. जब अनेकानेक टेस्ट एक ही बात कह रहे हैं कि हाँ ये चीज हील करता है, only then we say that the validity is high. Does the test measure whatever it is supposed to measure? Does the vaccine do whatever it is supposed to do? अगर वो नहीं करके कुछ और कर रहा है then the validity is low. ये कुछ नहीं कर पा रहा है then the validity is low. अगर वो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है जो उसको करना है then the validity is high. Clear on that? Guys, clear? Yes ma'am. Okay. And reliability is when I am implementing this test on anyone, anywhere, still the score is the same. Is the same in the sense उसी रेंज में आएगा. ऐसा नहीं है कि उसका स्कोर कुछ और आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज नूर को ये टेस्ट देती हूँ और फिर 6 महीने बाद या साल भर बाद नूर को फिर से वो टेस्ट देती हूँ तो नूर का टेस्ट का स्कोर सेम आएगा. या मैं नूर को ये टेस्ट देती हूँ और दूसरा कोई IQ टेस्ट देती हूँ तो नूर का जो टेस्ट स्कोर होगा वो सेम होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक टेस्ट पे आ रहा है कि अरे नूर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक टेस्ट पे आ रहा है कि नूर बहुत कम इंटेलिजेंट है. अगर ऐसा है तो टेस्ट में कोई खराबी है. इट कैन नॉट बी दैट हाई, सॉरी दैट डिफरेंट. हाँ ठीक है, 15-20 यूनिट्स का डिफरेंस हो सकता है लेकिन दैट शुड स्टिल बी विद इन दैट रेंज.
अगर इंटेलिजेंट है तो दोनों में इंटेलिजेंट ही आना चाहिए, अगर अबव इंटेलिजेंट है तो दोनों में अबव इंटेलिजेंट ही आना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक में इंटेलिजेंट बता रहा है और दूसरे में अबव इंटेलिजेंट बता रहा है। क्लियर गाइस? Yes. ओके, फिर हम वी आर डीलिंग विथ काउफमैन असेसमेंट स्किल्स। अगेन नॉट वेरी पॉपुलर, एक जमाने में पॉपुलर हुआ करता था बट नॉट वेरी पॉपुलर टुडे। This scale is intended to bridge the gap between theories of intelligence and measures of intelligence. ठीक है, let's look at Kaufman intelligence skills. धीरज थोड़ा सा ऊपर लीजिए प्लीज। आई गेस मुझे टाइम लग रहा है मेरी स्क्रीन पे आने के लिए। धीरज आपने पेज शिफ्ट किया था क्या? Yes, ma'am. ओके, अभी तक आया नहीं। ओके ओके, सो कॉफमैन KABC या KBC2 दो टेस्ट आए थे। एक मिनट। सो KABC का जो सेकेंड रिविजन 2004 में आया था फॉर द एज रेंज ऑफ 3 to 18। ओके, कॉफमैन जो टेस्ट है ये अच्छा बिटवीन कामत बिने का रेंज 21 तक होता है। 6 to 21 तक कामत बिने का रेंज है। एक पैराग्राफ प्रीवियस जाइए धीरज, एक पैराग्राफ प्रीवियस जाइए प्लीज, जस्ट 4 लाइन ऊपर। 21 के ऊपर हम लोग वी कैन नॉट बी यूज एनी पर्सन हु इज अबाउट 21 वी कैन नॉट यूज KBI फॉर देम। Any child which is below 5 or 6 we cannot be using KBI for them. We can use sorry, bachelor's pre-primary school BPPSI। ठीक है, तो वो हम लोग IQ टेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट बी यूजिंग एनी, अगर एज रेंज में वो चीज नहीं बैठती तो वी डू नॉट एडमिनिस्टर द टेस्ट। हम लोग तो कर लेते हैं, वी आर साइकोलॉजिस्ट, व्हेन वी आर लर्निंग द टेस्ट, हम लोग खुद के लिए तो कर लेते हैं अगर हम लोगों को कोई सैंपल नहीं मिलता उस एज ग्रुप का तो। बट when we are attempting the test, when we are giving the test, administering the test, we don't do it for people who do not fit in the age group, because उनके लिए अपने को norms नहीं मिलते। That is the reason why we do not use those we do not uh, administer the test beyond that particular age group. Clear guys? Clear? Any doubts, any queries? Yes, ma'am, it's clear. Okay. So this is about Kaufman assessment battery. धीरज आपने एक पैराग्राफ ऊपर किया, मुझे अभी तक नजर नहीं आया। मैम क्या करना था? सॉरी। कोई बात नहीं, एक 4 लाइन ऊपर जा सकते हैं प्लीज। ऊपर हम लोग नीचे चले गए हैं। You have moved to page 49. I'm talking about page 48, the paragraph above KABC2. Yes, welcome. Thank you. So the first Kaufman scale, KABC, that was developed by Kaufman and Kaufman. ये Germans थे दोनों। Dheeraj, we have gone back to 49 again. So ये दोनों Germans थे, इन्होंने first test बनाई and then they revised the second test much later. Okay, 2004 में उन्होंने इस टेस्ट का रिवीजन किया।
So when it was developed in late 70s and early 80s and was published in 1983, वेस्ला बिने सबसे ज्यादा पॉपुलर टेस्ट मानी जाती थी और आज की तारीख में भी मानी जाती है. बट एंड कॉफमैन टेस्ट है, बट इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट या इतनी ज्यादा रेगुलर टेस्ट नहीं मानी जाती. Okay, so the test that we saw, the second revision we saw was in 2004. जो मैंने बताया था कि ये थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस और मेजरमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस के जो बीच में जो गैप है, इस गैप को कवर करने के लिए ये टेस्ट आई है. वो कैसे करते हैं वो हम वी विल बी लुकिंग इट बिलो. बट टू इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ द सीरीज आर KBC and KBC2. Okay. KBC2, which came in 2004, measures 3 to 18 age group. इसमें long term retrieval मतलब आपके स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, that can be asked a question to an adult. Okay. या आप जब पैदा हुए तब आप कहाँ रहते थे. Okay. This is long term retrieval. Sequential processing, short term memory, कि मैं आपको 3 वर्ड्स बताऊंगी, आपको उसी ऑर्डर में वो तीनों वर्ड्स बताने हैं. ठीक है. Simultaneous processing, that is you ask the person to do something and you keep asking question or something of that sort, something relevant to that. We will be looking at the scales and the example, किस तरीके से होता है. There is a table for that below. And verbal knowledge, okay, which is planning, which is fluid ability, कि किस तरीके से यहाँ से आपको मार्केट जाना है तो आप क्या क्या करोगे. This fluid ability. And crystallized ability is verbal knowledge, whatever information we have stored in our brain, that is crystallized ability. Yeah. Clear, guys? Yes, ma'am. Okay. Dheeraj, how far do we have to go apart after Kaufman in this chapter? Because I think we can stop with Kaufman. Ma'am, it talks about the structure of KBC2, then the standard scores and scale scores. After that, there is a Kaufman adolescent and adult intelligence test, which would be the last topic. So I think it's 1, 2, and 3 pages. Guys, do you want to do Kaufman later? Yes, Okay, Because ma'am. I don't. We have already done 2 tests for today. We have already done Binet. We have already done the Terman and Merrill concept of Binet, and then we did the whisk. So I don't want you people to get confused with one more test for today. Yes, ma'am. We can do it later. Yeah. So बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी because this is quite theoretical. तो मजा नहीं आएगा. खिचड़ी बनने के chances ज़्यादा हैं. So let's do it later. Let's start Kaufman assessment, but Kaufman assessment skills in the next session. Yes. Cool with that? Okay. Yep, will do, ma'am. Any other queries, any other concerns before we close? Not really, ma'am. From my end, no queries. Okay. ठीक है. Let me know on WhatsApp as well in case there are any queries, and please read through this. If you do not read through, इसमें मिस होने के chances ज़्यादा हैं. SB5 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. It's only a good to know information for your exam. 99% तो एग्जाम के लिए भी नहीं आएगा, बट फिर भी जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आप उसको रीड करके रख लीजिए, समझ के रख लीजिए. But because whatever is asked at the exam is more relevant to the market, whatever is going to be used by you people, तो उससे रिलेटेड सवाल ज्यादा आते हैं एग्जाम में. तो SB5 के आने के चांसेस कम है, बट फिर भी पढ़कर रखिएगा, बिकॉज उसके बाद SB5 को कोई नहीं पूछेगा. Okay. Yes. Okay. All the best, guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a Bye-bye. Dheeraj. Bye. Bye, Dheeraj. Take care. Bye, all. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.